Hello, fellow aspirants. Welcome to the channel Civil Street. In today's video, we will be dealing with the different sources that helps us to understand the history of Uttarakhand. आज के वीडियो में हम वो विभिन्न स्रोतों को जानेंगे जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास को जानने में मदद मिलती है. So first of all, let us understand what are those different sources. So basically, in order to study history, the different sources can be categorized into four major heads. यहाँ पर हम विभिन्न सोर्सेस को जानने के लिए उनको चार मुख्य कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. इस कैटेगरी के अंदर वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रॉक शेल्टर्स, cup marks, pottery, etc. सो उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड के केस में, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द स्टेट. The prehistoric period of the state is basically and primarily understood through the different archaeological evidences that we have. The second category is of the ancient literatures and the religious texts. जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं और जो प्राचीन साहित्य है उसके मदद से भी हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं. This category is very helpful in order to understand the proto-history of Uttarakhand and as well as the ancient and the medieval. So जो ancient literatures हैं और religious texts हैं, in fact जो religious text है वो basically proto-history का एकमात्र sources है. proto-history क्या होती है इसको भी जानते हैं आगे. The third category are the inscriptions, the different inscriptions that we have. In fact, one of the most famous historical piece that Uttarakhand has is the Kalsi Rock Edict, जिसको हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे. And the last category is of the local legends. So these are the four major categories of sources that we are going to study about in this lecture. So let us first understand about the history and the different parts of history in general. So friends, history को हम basically चार periods में divide कर सकते हैं अगर देखा जाए. So the first part is the prehistory and I am taking the proto-history along with it. Writing has not been developed. So prehistory and proto-history is the period in which a culture or civilization has not developed the writing in general. अच्छा, अब इसमें proto-history फिर how proto-history is different from prehistory then? proto-history के बारे में अगर बात करें, so it's a period where a culture or a civilization has not developed the art of writing, but other cultures that developed writing have noted existence of those
pre-literature groups. So proto-history is basically a period where the culture that we are studying has not developed the art of writing, but other culture in the context of Uttarakhand, the cultures that were developing in the Gangetic plains, they have developed the art of writing, and they have noted the existence of different people and different races and different civilizations in the Uttarakhand area. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो द प्रोटो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली द आर द रिलीजियस टेक्स्ट्स which were written during this period, the different religious text. So the first part that we are going to study is the prehistory and the proto-history historical sources of Uttarakhand. इसके अलावा the second part that we are going to deal is the ancient and the medieval sources. तो एंशंट और मिडिवल सोर्सेज के अंदर अगर पहली बात तो एंशंट और मिडिवल सोर्सेज कौन सा पीरियड है, तो अगर बात किया जाए तो 6000 BC टू आई थिंक 650 AD तक के पीरियड को एंशंट हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एंड मिडिवल जो है वो 500 AD से लेके 1500 AD तक का पीरियड है. सो प्रोटो हिस्ट्री की हम जो बात कर रहे हैं तो प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बताना भूल गया. 2.5 मिलियन ईयर्स से आपका बेसिकली 2.5 या 2500 BC तक का पीरियड जो है वो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री माना जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री को बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. द प्री हिस्टोरिकल प्लस प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड. द सेकेंड वन इज द एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हमने 6000 BC से 650 AD तक रखा है. इसके अलावा द मिडिवल पीरियड्स विच डेट्स फ्रॉम 500 AD टू 1500 AD, और बाकी 1500 AD से प्रेजेंट तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है. सो द फर्स्ट पीरियड इज द प्रीहिस्टोरिकल पीरियड. प्रीहिस्टोरिकल पीरियड जो है वी कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 एजेस. द फर्स्ट एज इज द पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज बेसिकली वो पीरियड है जहाँ पर द ह्यूमन वाज बेसिकली एंगेज इनटू हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर फूड, और जो टूल्स थे दे वर वेरी हैवी. द सेकेंड एज इज द मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक एज जो है वो 10,000 BC से 4500 BC तक मानी जाती है. दिस पीरियड इज बेसिकली द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज. जहाँ तक इनके पीरियड की बात की जाए तो पैलियोलिथिक एज जो है 2.5 मिलियन ईयर्स से 10,000 BC तक मानी जाती है. मेसोलिथिक जो पीरियड है वो 10,000 BC से 4500 BC तक माना जाता है, और जो न्यूलिथिक पीरियड है वो 4500 BC से 2500 BC तक माना जाता है. फर्दर पैलियोलिथिक भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है. द लोअर पैलियोलिथिक, द मिडिल पैलियोलिथिक और द अपर पैलियोलिथिक. सो इन वो टाइमलाइन मैंने इसमें लिख रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं. उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो पैलियोलिथिक एविडेंसेस हैं जो भी उत्तराखंड में मिले हैं वो मोर और लेस सारे अपर पैलियोलिथिक एज के हैं. लोअर पैलियोलिथिक एज के 1-2 एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं which we are going to discuss now. So let's start. So the prehistory or the प्रागैतिहासिक काल of Uttarakhand starts with the lower Paleolithic age. तो इसके अगर देखें तो the implements or evidences of lower Paleolithic age are found from a few places in Uttarakhand. For example, from Kalsi. Second is Srinagar along the Alaknanda river in the Pauri district. The Khutani Gadera in Nainital,
एंड द ईस्टर्न रामगंगा वैली नियर अल्मोड़ा। यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स और एविडेंसेस मिलते हैं। जहाँ तक इन इम्प्लीमेंट्स और एविडेंसेस की बात की जाए तो इसमें वही जो आप सबने पढ़ा होगा, क्लीवर्स, चॉपर्स और एक्स मेड अप ऑफ स्टोन, ये सब मिलता है। देन वी फाउंड डिफरेंट मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक सोर्सेज। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी आर द कप मार्क्स। इसका मैं साइड में एक फोटो भी इंक्लूड किया है। सो द कप मार्क्स और द ओखल, ये एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एंड न्यूलिथिक एरा का सोर्स माना जाता है। उत्तराखंड के अंदर जो कप मार्क्स हैं वो बेसिकली सुरेगवाल मुनिया चौरा, जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ पे फाउंड हुए थे। दे आर वेरी फेमस कप मार्क्स फाउंड इन उत्तराखंड। सो सुरेगवाल मुनिया चौरा in the Almora district. The second area from where the cup marks are found is the Bagwali Pokhar, and there is one more area in the Someshwar. Both these areas falls in the district of Almora. These are the two most important sources. इसके अलावा the quartzite instruments near Jaskot in the Jageshwar region of Uttarakhand, ये भी एक मेजर मेसोलिथिक सोर्स है जो उत्तराखंड में मिलता है। One of the most important category of the prehistorical sources are the burials. उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो बरियल्स हैं, जो फेमस बरियल्स हैं, वो नौला जेनाल विलेज जो कि ईस्टर्न रामगंगा वैली अल्मोड़ा में पड़ता है, एंड द सेकंड इज द सांधा एंड बसेड़ी विलेज, जहाँ पे दो बरियल्स फाउंड हुए थे। इसके अलावा मलारी में भी बरियल फाउंड हुआ था, दैट वाज ऑफ अ एनिमल। इसके अलावा द मोस्ट फेमस सोर्स, द प्रिस्टोरिकल सोर्स दैट वी हैव, जो कि आप वन वे और द अदर किसी न किसी बुक में पढ़ते रहते हैं, आर द डिफरेंट cave paintings or the rock shelters. In fact, I should write here rock shelters that Uttarakhand has. Most of the rock shelters are found in two districts, in the district of Almora and Chamoli. So let us go through the major rock shelters of Uttarakhand. The first one is the Lakho Diyar. Lakho Diyar is basically situated or located along the Suyal River in the Almora district. It was discovered by Dr. M.P. Joshi. In this rock shelter, we found the carvings having group dance and hunting scenes. इस रॉक शेल्टर के अंदर देर आर बेसिकली थ्री कलर यूज्ड, ब्लैक, वाइट एंड अ काइंड ऑफ गेरू और काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल्ड ऑरेंजिश कलर। इसके बाद नेक्स्ट जो रॉक शेल्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज फलसीमा। फलसीमा जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इस रॉक शेल्टर में वी फाउंड yoga pose and dancing pose on the carvings, and we also found two cup marks from the Falsima rock shelter. The third one also from Almora is Rethap. यहाँ पे hunting और dancing के scenes carved है। Then the fourth one again from Almora, the Fadaknauli and the Petshal rock shelter. ये डॉक्टर यशोधर मटपाल, a famous historian from Uttarakhand, इनके द्वारा खोजा गया था, and we can see the carvings of human dancing together in these rock shelters. After this, we have Gwarkhaudiyar, a famous rock shelter from the district of Chamoli. ये राकेश भट्ट जी द्वारा डिस्कवर किया गया था, and we can see the carvings of humans and animals. And in animals, we can see the carvings of sheep and deer on the rock shelter. ये चमोली का rock shelter है and it's a very famous one. Then the other one is Kimni, again from Chamoli. यहाँ पर भी animals और hunting scenes carved हैं। तो these are the major rock shelters from Uttarakhand.
रॉक शेल्टर वाला ये पोर्शन आई होप मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, सो इसको जल्दी जल्दी हमने कवर किया. देन द नेक्स्ट पार्ट आर द कॉपर इंस्ट्रूमेंट्स. जो मीजोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड के जो कॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उत्तराखंड में काफ़ी जगहों से वी कैन फाउंड दैट. बनकोट इन पिथौरागढ़ हैज़ अराउंड 8 कॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा अल्मोड़ा और बहादुराबाद इन हरिद्वार ऑल्सो वी कैन सी कॉपर इंस्ट्रूमेंट फाउंड फ्रॉम दिस प्लेसेस. फ्रेंड्स, इसके बाद हम मलारी विलेज के बारे में पढ़ते हैं. हम इसको अलग से ले रहे हैं बिकॉज इट हैज़ अ lot of historical significance in the context of Uttarakhand history. तो मलारी विलेज इट्स इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो नीति मलारी वाला एरिया है वहाँ पर ये एक विलेज है. इस विलेज के अंदर काफ़ी सारी एक्सकेवेशंस हुए हैं एंड अ सीरीज ऑफ सर्वेज वर डन from 1983 to 2001, and in these excavations a lot of new findings came out. So the important one are the animal skeleton of an Himalayan animal which is called Zuba or Zubu, and in a black or grey painted ware was also found from Malari village, which we can club into the category of pottery. इसके अलावा यहाँ पर burials भी पाए गए, शवाधान. The most important finding from the village of Malari was a gold mask weighing 5.2 kgs, 5 किलो के आसपास का एक स्वर्ण मुखोटा मलारी विलेज से मिला, जो कि टाइम एंड अगेन एग्जाम्स में भी पूछा जाता रहता है. सो फ्रेंड्स, दिस सम्स अप द prehistorical sources of Uttarakhand history. I hope you people will appreciate this video. Thank you and have a nice day.